شام غریباں، کیا یہ ایک ایسی شام ہے جس میں شیعہ مرد اور خواتین لائٹیں بند کر کے غلط کام کرتے ہیں؟ شام غریباں کی حقیقت کیا ہے؟ اس شام کو شام غریباں کیوں کہتے ہیں؟ شام غریباں کا کیا مطلب ہے؟ شام غریباں کب سے شروع ہوئی؟ ایران، عراق اور پاکستان میں اس کو کیسے منایا جاتا ہے؟ ایک لڑکے کا سچا واقعہ بیان کیا جائے گا کہ جب وہ شام غریباں کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے امام بارگاہ کے اندر گیا تو اس نے وہاں جو کچھ دیکھا حیران رہ گیا۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ شام غریباں کے بارے میں ایک لڑکے کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کو اسی کی زبانی سنیں۔ میں ایک دیہاتی گھرانے میں پیدا ہوا۔ مذہب کے بارے میں میری معلومات گاؤں کے مولانا کی معلومات تک محدود تھی۔ ان کی کل قابلیت یہ تھی کہ وہ پہلے والے مولانا کے بیٹے تھے جن کی وفات کے بعد وہ خود بخود تعینات ہو گئے تھے۔ محرم کے قریب آتے ہی مختلف قسم کی باتیں سننے کو ملتی تھی۔ ان کا مقصد شاید خوف پیدا کرنا تھا۔ یہ بتایا جاتا کہ شیعہ محرم میں جلوس نکالتے ہیں اور سنی بچوں کو اغوا کر کے ان کا خون نیاز میں ڈال دیتے ہیں۔ دلی طور پر میں شیعوں سے خوف زدہ ہو گیا اور دل ہی دل میں سوچا کہ کیسے ظالم لوگ ہیں۔ ایک دن ایک پکے نمازی نے کہا کہ اہل تشیع بڑے عجیب ہیں۔ وہ جب کوئی کھانے کی چیز ہمیں دیتے ہیں تو اس میں تھوک ڈال دیتے ہیں۔ ہمیشہ سچ بولنے اور نماز کی پہلی صف میں کھڑے ہونے والے اس سفید ریش کی بات پر سوال اٹھانا تو خود پر سوال اٹھانے جیسا تھا۔ اس سے میری نفرت کئی سو گنا بڑھ گئی۔ نذیر بھائی، یہ جو کہا جاتا ہے کہ اس میں پتہ نہیں شیعہ لوگ کچھ ملاتے ہیں، کچھ کہنا چاہیں گے اس پہ؟ ارے بھائی، یہ تو سب باتیں ہیں۔ ہائی اسکول میں داخل ہوا تو میرے ایک دوست نے محرم کے قریب آتے ہی انتہائی رازداری سے مجھ سے پوچھا، تمہیں پتہ ہے کہ شام غریباں کیا ہوتی ہے؟ مجھے سرے سے کچھ معلوم نہ تھا۔ میں نے کہا مجھے معلوم نہیں، کیا ہوتا ہے آپ بتا دیں۔ اس دوست نے کہا ہمارے مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ شام غریباں میں شیعہ مرد و خواتین ایک حال میں جمع ہوتے ہیں اور سب لائٹیں بجھا دی جاتی ہیں اور غلط کام کرتے ہیں۔ میٹرک کے بعد کالج میں داخل ہوئے تو پتہ چلا کہ ہمارا ایک ہم جماعت کا تعلق اہل تشیع سے ہے۔ پہلے تو تجسس سے اسے دیکھا، بلکہ بغور دیکھا تو وہ نارمل انسان ہی لگا۔ کچھ عرصے بعد ہم تین دوست بیٹھے تھے کہ وہ لڑکا بھی ہمارے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور سارے حملے ایک ہی بار شروع کر دیے کہ تم نے حسین کو مارا، تم نیاز میں خون ملاتے ہو، تم جب ہمیں کھانے کی چیزیں دیتے ہو تو اس میں تھوک دیتے ہو۔ میں سب کچھ بول چکا تو اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، مگر اس نے فقط اتنا کہا کہ یہ ساری باتیں غلط ہیں اور اٹھ کر چلا گیا۔ میرے دوست نے مجھے کہا کہ تم نے زیادتی کی ہے، اس نے کوئی مذہبی بات نہیں کی تھی۔ جب میں نے سوچا تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے تو اس کے پورے خاندان پر تہمت لگائی ہے اور وہ بیچارہ خاموشی سے چلا گیا۔ وقت گزرتا گیا، اس سے واجبی سا تعلق بن گیا۔ محرم کے ایام شروع ہوئے تو ایک دن اس نے مجھ سے کہا کیا آپ حقیقت معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ شام غریباں میں کیا ہوتا ہے؟ تحقیق کے لیے آ جاؤ، اگر تمہاری بات سچی ہوئی تو میں بھی واپس پلٹ جاؤں گا، مرتا کیا نہ کرتا۔ اب فرار کی کوئی صورت نہ تھی، لہٰذا میں نے جانے کی حامی بھر لی۔ طے یہ ہوا کہ ہم 10 محرم مغرب کے وقت ان کے گھر پہنچیں گے جہاں سے امام بارگاہ جائیں گے۔ حسب وعدہ جب ہم ان کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ سب نے سیاہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ایسے لگ رہا ہے جیسے بہت تھکے ہوئے ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ 10 دنوں سے مجالس چل رہی ہیں، 7 جلوس بھی تھے۔ رات کا جلوس دیر سے ختم ہوا اور صبح پھر 10 محرم کا جلوس تھا، اس لیے پورا دن اس میں شریک رہے ہیں۔ میں نے غور سے دیکھا تو میرے دوست کے والد کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھی۔ میرا دوست کھانا لے کر آیا اور بتایا کہ 10 محرم کی وجہ سے کھانا نہیں پکایا، یہ نیاز ہے، اسی پر گزارا کرے۔ میں نے جیسے ہی نیاز کا نام سنا میرے ذہن میں سب منفی باتیں آ گئی۔ میرے لیے بہت مشکل تھا کہ میں ایک ایسا کھانا کھاؤں، لیکن اس جملے نے میری مشکل آسان کر دی کہ یہ لنگر پڑوس کی اہل سنت فیملی نے بھیجا ہے۔ پھر بھی بڑی مشکل سے ایک روٹی ہی کھا سکا، لیکن اس دوست کے والد کے مہذب رویے اور دیگر افراد خانہ کے حسن سلوک نے مجھے تھوڑا سا شک میں ڈال دیا۔
गर्ज रात 9 बजे के करीब हमें कहा गया कि इमाम बारगाह चलते हैं, शाम गरीबा वही होगी। अब मेरे ज़हन में वो सारी बातें एक एक करके आने लगी जो शाम गरीबा के हवाले से मस्जिद के मौलवी से लेकर आम दोस्त से सुनी हुई थी। सोच रहा था कि मैं यहाँ क्यों आया। इन्हीं सोचों में गुम हम इमाम बारगाह की गली में पहुंच गए। वहाँ बच्चे, बूढ़े, जवान और खवातीन सियाह कपड़ों में मलबूस इमाम बारगाह में दाखिल हो रहे थे। हम मरकजी दरवाजे से दाखिल हुए जबकि खवातीन अलग दरवाजे से इमाम बारगाह में दाखिल हुई और दूसरी मंजिल पर पहुंच गई। दूसरी मंजिल कुछ इस तरह से थी कि वहाँ लोहे की बारीक जाली लगी थी। मैंने देखा कि वहाँ मौजूद हर शख्स के चेहरे पर उदासी है। हर शख्स ही ऐसा लगता है जैसे बहुत थका हुआ है। इन्हीं ख्यालात में गुम था कि इमाम बारगाह की बत्तियां बुझाई जाने लगी। अब सूरत हाल ये थी कि इमाम बारगाह के बड़े हाल में सिर्फ एक बत्ती स्टेज के ऊपर जल रही थी। उसी दौरान एक जाकिर नमूदार हुए जिनके कपड़े सियाह थे, हल्की हल्की दाढ़ी थी, गिरेबान खुले थे और कफें चढ़ा रखी थी। इन्होंने माइक पर आते ही बुलंद आवाज से पढ़ा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये पढ़ना था कि हाल में कोहराम मच गया, गोया ये लोग पहले से तैयार बैठे थे। इन्होंने इस जुमले को 3 बार दोहराया, हर बार के साथ गिरिया की आवाज बुलंद हो जाती। मैं इस सूरत हाल के लिए बिल्कुल तैयार न था। मैं हैरत से देखने लगा कि अभी तक जाकिर ने कुछ कहा ही नहीं और ये इस कदर रो रहे हैं। मगर फिर खुद को कोसने लगा कि अजीब हूँ, जवान और बुजुर्ग तो अपनी जगह, बच्चों के आंसू उनके गाल गीले कर रहे हैं। अब जाकिर ने बोलना शुरू किया, लोगों तुम्हारे नबी का नवासा शहीद कर दिया गया है। नबी जादियां अब दुश्मन के नरगे में हैं, उन्हें कैद किया जा चुका है। हर जुमला मेरे दिल में खंजर की तरह पैवस्त हो रहा था और शोर व गिरिया मुझे खींच रहा था। अब खवातीन के रोने की आवाजें भी नीचे तक आने लगी थी। जाकिर कह रहा था, आज सुबह माओ के पास बेटे थे, अब शामे गरीबा है, अब वो बेटे नहीं रहे। जाकिर पढ़ता रहा और मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी आंखों से आंसू बहना शुरू हुए, कब हिचकियां बंधी और कब आवाज बुलंद हुई। शामे गरीबा खत्म हो चुकी थी और मैं खुद को काफिले हुसैनी का शरीक समझ रहा था। मुझे लग रहा था कि मेरी फिक्र की भी शामे गरीबा थी। मेरे दिमाग में बड़े मुकद्दस बुत टूट चुके थे जो कुरान मजीद की तिलावत करते थे, जो पहली सफ में नमाज पढ़ते थे। उन लोगों ने क्या सितम ढाए थे। मेरे नबी के खानदान के लिए रोने वालों के बारे में इस कदर तोहमतें। सच पूछे तो अब मेरा ज़हन उनकी बताई हर बात को मशकूक समझ रहा था। इतने में मेरा शिया दोस्त आ गया और रोते हुए मेरे गले लगा और कहा, ये होती है शामे गरीबा, यानी गरीबों की शाम। खानदान मुस्तफा के कट जाने के बाद उनके खानदान की बेकसी की शाम, खानदान पैगंबर के सहरा में बेयारो मददगार हो जाने की शाम। ऐसी शाम जिस पर अहले ईमान की आंखें पानी और दिल खून के आंसू रोता है। यही शाम है जिसमें रिवायत उम्मे सलमा के मुताबिक खातमुल अंबिया रोते थे। रोने की शाम, आहो बका की शाम, और यही शाम गरीबा है। मैंने अपने दोस्त से हाथ जोड़कर माफी मांगी। उसने कहा, मैं तुमसे नाराज हुआ ही नहीं था क्योंकि हमें मालूम है यजीदियत मौजूद है। मैं हैरान होता हूँ कि इस दौर में भी इतना गलत प्रोपोगंडा इतना कामयाब हो सकता है। शाम गरीबा फारसी जबान व अदब में आशूरा की शाम और इस रात की सोगवारी को कहते हैं कि जिस मजलिस में नोए पढ़े जाते हैं वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अहले बैत की मुसीबत और वाक़े करबला के बाद बच्चों और असीरों पर जो गुजरी उसके बारे में है कि अहले बैत ने अंधेरी रात करबला के बियाबान में कैसे गुजारी। इस रात और मुहर्रम की दूसरी रातों के दरमियान बाज और रसूमात में फर्क ये है कि इस रात को मोमबत्ती जलाकर अंधेरे में बैठते हैं। लफ्ज गरीब का एक माना वतन से दूर होना है और बाज औकात जो बे यारो मददगार और अकेला रह गया हो उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। शामे गरीबा भी जो लोग अपने वतन से दूर अकेले और बे यारो मददगार रह गए थे उनके लिए इस्तेमाल हुआ है। इस्तिलाह और फारसी जबान के मरसिये में रोजे आशूर के सूरज गुरूब होने और इस रात की सोगवारी को कहा गया है। दुश्मन की फौज ने आशूरा का सूरज गुरूब होते ही औरतों को खैमों से बाहर निकाल दिया और खैमों को आग लगा दी और उस वक्त मस्तूरात फरियाद करती रही और अपने प्यारों की लाशों को देखकर अपने मुंह पर पीटती रही। उमर इब्ने साद ने शाम आशूरा को इमाम हुसैन और करबला के दूसरे शोहदा के सिरों को के जिनकी तादाद 72 थी, शिमर, कैस बिन अशअस और उमर बिन हुजाज और अजरा बिन कैस के हाथों इब्ने जियाद के पास भेज दिया। उमर साद अपने लश्कर के
हमरा उस रात करबला में ही रुका और दूसरे दिन जोहर के करीब अपने सिपाहियों की लाशों को दफन करने के बाद अहले बैत और दूसरे बचे हुए अफराद को लेकर कूफे की जानिब हरकत की। कौल के मुताबिक मुहर्रम की 11वीं रात, जिसे शाम गरीबा कहते हैं, हजरत ज़ैनब ने नमाज शब तर्क न की, लेकिन इस मुसीबत और सदमे के बाइस इस रात नमाज शब बैठकर अदा की। मुजफ्फरुद्दीन शाह की हुकूमत से सोग की ये रात ईरान के शहर तेहरान में मरसूम न थी और शाम गरीबा का नोहा तुर्की जबान में है, इसलिए मुमकिन है कि ये आजादारी की रस्म मुजफ्फरुद्दीन के जमाने में तुर्क कौम की वजह से तेहरान में शुरू हुई और शाम गरीबा की बहुत बड़ी मजलिस अहले तुर्क की मस्जिद शेख अब्दुल हुसैन में होती थी। और जियारात की किताब में आशूर की असर के बारे में जियारत मौजूद है, जिसमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम अली अलैहिस्सलाम, हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और इमाम हसन अलैहिस्सलाम यानी जो आजादार थे, उनकी खिदमत में तस्लियत अर्ज करते हैं। शायद शाम गरीबा मनाने की रस्म भी इसी जियारत की वजह से शुरू हुई हो। शाम गरीबा तकरीबन एक मजलिस की तरह है, इस फर्क के साथ कि इस मजलिस में चिराग रोशन नहीं किए जाते और फकत कुछ मोमबत्ती जलाकर रोशनी की जाती है और अज़ादार इस रात को जुलूस या अलम बरामद नहीं करते और ना ही जंजीर जनी या मातम करते हैं, बल्कि परेशानी और गम की हालत में मजलिस बर्पा करते हैं, जिस मजलिस का मौजू सिन्ना 61 हिजरी में गुजरी 11 मुहर्रम की रात है कि उस रात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खानदान पर क्या गुजरी थी। और बताया जाता है कि अहले बैत की औरतों और बच्चों ने ये तारीख और बेपनाह रात किस तरह करबला के बियाबान में गुजारी है। शाम गरीबा में आराम और आहिस्ता आवाज में नोहा पढ़ा जाता है। कभी सब इकट्ठे मिलकर बैठते हैं और लिखा हुआ एक शेर सब मिलकर पढ़ते हैं और शेर का दूसरा बंद अपनी जगह से उठकर और चलते हुए पढ़ते हैं और इस हालत में मजलिस में जाते और वापिस आते हैं। करबला में इस रात को लैलतुल वहशा यानी वहशत की रात भी कहते हैं और इस रात को बच्चों और असीरों की याद में मोमबत्ती जलाते हैं। पाकिस्तान में भी ये मजलिस सूरज गुरूब होने के बाद मुनाकिद होती है और इस मजलिस में अहले अज़ा अंधेरे में और जमीन पर बैठते हैं और एक खतीब आता है और वो मसाइब पढ़ना शुरू करता है।